Hello, friends, how are you? I am sure that you all are fine staying at your place during this pandemic caused by coronavirus. And today we'll read ninth chapter of his Footprints Without Feet book for the students of 10th class. And we have already made one video from this book, from this story. And today we'll cover the rest of the part. And so far that Bholi was a neglected one in her family. She was the fourth daughter of Nambardar Ramlal, and when she was born she was a healthy child, but when she was 10 months old she fell off the cot and some part of her brain was damaged. And when she started speaking she would stammer a lot. And when she was 2 years old then she had an attack of smallpox that disfigured her face completely. And you know in her family she was considered dumb-witted, and that's why she was given she was called Bholi. Although her name was Sulekha, but she was considered Bholi, and everybody called her Bholi. After after the marriage of Champa, now Nambardar Ramlal would think of Bholi, and a new primary school for the girls was opened in the village. And the inauguration was done by Tehsildar Sahib. Tehsildar Sahib came over there and he asked Ramlal to send her children to school, to send her daughters to school, and set an example before the villagers. Ramlal could not disobey the orders of Tehsildar, and he told this matter to his wife. And his wife said told Ramlal that she had a nice plan, that Bholi should be sent to school because there was no possibility of her getting married, and apart from that she was lacking sense also. So better the teachers at school should deal with her. And in this way the story proceeds. So we'll cover rest of the part. Okay, so let's get started. Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. भोली नहीं जानती थी कि स्कूल कैसा होता है और वहाँ पर क्या होता है, लेकिन वो बड़ी खुश थी. शी वॉज वेरी हैप्पी टू फाइंड इतनी सारी लड़कियों को, बहुत सारी लड़कियाँ उसकी अपनी खुद की एज की, अपनी उसकी उम्र वाली जो दूसरी लड़कियाँ, बहुत सारी लड़कियों को देखा तो बहुत खुश हुई. शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, और उसने इस बात की होप की, आशा की कि शायद इन लड़कियों में से कोई उसकी दोस्त बन जाए. द लेडी टीचर who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. और जो क्लास में लेडी टीचर थी वो कुछ कह रही थी लड़कियों से, भोली कुछ भी समझ नहीं पाई. She looked at the pictures on the wall. The colors fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which the Tehsildar had come to visit their village. The goat was black like the goat of their neighbor. The parrot was green like the parrots she had seen in the mango orchard, and the cow was just like the Lakshmi. वो जो भोली थी, she was looking at the wall, और वहाँ पर जो पिक्चर्स बनी हुई थी उनके जो कलर्स थे, उन कलर्स ने भोली को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया. और दीवार के ऊपर जब उसने हॉर्स की पिक्चर को देखा तो उसको तहसीलदार साहब जिस घोड़े पर बैठ के आए थे उसकी याद उसे आती है.
और बकरी को देख करके उनके पड़ोसी की बकरी की याद आती है, और पैरेट को देख करके उसने सोचा जो मैंगो का जो बगीचा था, आम का बगीचे के अंदर जो उसने पैरेट्स देखे थे उनकी तरह वो हरा रंग का तोता था दीवार के ऊपर बना हुआ। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो गाय थी वो ठीक उनकी लक्ष्मी जैसी थी। आपको पता है लक्ष्मी इनकी गाय का नाम था। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, और अचानक भोली ने नोटिस किया कि टीचर उसके पास खड़ी हुई है और उसकी तरफ मुस्कुरा रही है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? तो टीचर ने पूछा बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? भो भो भो। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, और वो इस तरीके से स्टैमर करने लग जाती है, उससे आगे बोल नहीं पाई। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन ए हेल्पलेस फ्लड। फिर वो उसने रोना स्टार्ट कर दिया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शी केप्ट हर हेड डाउन as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. और उसने अपने सिर को नीचे झुका लिया कोने में जहाँ पर वो बैठी हुई थी, और उसकी उन लड़कियों की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई जिसको वो जानती थी कि अभी भी उसके ऊपर हंस रही थी। When the school bell rang, all the girls screamed out of the classroom, but Bholi dared not लीव हर कॉर्नर। जब स्कूल में घंटी बजती है तो लड़कियां क्लासरूम से बाहर दौड़ के जाती हैं, लेकिन भोली की हिम्मत नहीं हुई कि उस कोने को छोड़ दे। कोने में वो बैठी रही। हर हेड स्टिल लोवर्ड, शी केप्ट ऑन सोबिंग, उसका सिर अभी झुका हुआ था और वो सुबकी ले रही थी। सोबिंग का मतलब होता है सुबकी लेना। भोली, the teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. It touched her heart. और तभी टीचर वहाँ पर आती है और उसे प्यार से बोलती है भोली, और जब उस आवाज़ को सुना तो भोली को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भोली ने ऐसी सॉफ्ट और अच्छी लगने वाली आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी थी अपनी ज़िंदगी के अंदर। कोई उसे इतना प्यार से कभी बोला ही नहीं था, और यह आवाज़ उसकी दिल को छूती है। गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने कहा गेट अप। इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप, और इस आवाज़ के अंदर, टीचर की आवाज़ के अंदर कोई कमांड नहीं थी, कोई ऑर्डर नहीं था, सिर्फ एक फ्रेंडली सजेशन था, और भोली खड़ी हो जाती है। नाउ टेल मी योर नेम। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। तो जैसे टीचर ने नाम पूछा, भोली के पसीने छूट जाते हैं। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, क्या उसकी लड़खड़ाती जुबान उसकी फिर से बेइज्जती कराएगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, लेकिन इस दयालु काइंड लेडी के लिए उसने प्रयास करने का फैसला किया कि एक प्रयास और करूँगी बोलने का। शी हैड सच ए सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर, क्योंकि टीचर की आवाज़ बहुत अच्छी थी, सॉफ्ट थी, और वो उसके ऊपर नहीं हंसेगी, उसका मजाक नहीं उड़ाएगी। भो 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 शी बिगेन टू स्टैमर, और उसने हक लाना शुरू कर दिया, भो भो करने लगी। वेल डन वेल डन, द टीचर एनकरेज्ड हर। कम ऑन नाउ द फुल नेम, टीचर ने उसे एनकरेज किया, बहुत अच्छी बात है, शाबाश शाबाश, पूरा नाम बोली अपना। भोली, एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट। एट लास्ट Boli was able to tell her complete name and full name, and then she felt great relief as if it was a great achievement. Well done. The teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. टीचर ने उसको शाबाशी दी और उसकी बड़े स्नेह से उसे थपथपाया और कहा, अपने दिल से इस डर को निकाल दो
तब तुम देखोगी, तब तुम कहता है कि दूसरे व्यक्तियों की तरह बोल पाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। भोली ने टीचर की तरफ देखा जैसे कि पूछना चाहती थी, क्या वास्तव में ऐसा हो पाएगा कि वो दूसरे लोगों की तरह बोल पाएगी? यस यस, इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम? भोली नोडिड। हाँ ऐसा होगा, ये बहुत आसान होगा, तुम बस रोज स्कूल आओ। क्या तुम रोज स्कूल आओगी? भोले ने हाँ में सिर हिलाया। नो से इट अलाउड। नहीं, तो लेकिन टीचर उसे सुनना चाहते थे, तो टीचर ने पूछा, उसे कहा, नहीं नहीं बोल के बताओ जोर से। ये यस यस। एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। और भोली आंसर दे पाती है, हालांकि थोड़ी दिक्कत उसे आती है इन द बिगिनिंग, लेकिन फिर भी वो आंसर दे पाती है टीचर के सवाल का। और वो खुद भी हैरान थी इस बात को लेकर के कि वो कैसे बोल पाई। एस्टोनिश्ड का मतलब होता है हैरान होना। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। मैंने तुम्हें बताया नहीं था, हैं? अब ये किताब ले लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड ए काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। और बुक के अंदर बहुत सारी पिक्चर थी, बढ़िया बढ़िया, और जो पिक्चर्स थी वो अलग अलग कलर्स में थी, रंगीन थी। डॉग, गोट, कैट, हॉर्स, पैरट, टाइगर, गाय, इन सब की वहाँ पर पिक्चर बनी हुई थी उस पर्टिकुलर बुक के अंदर। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। और प्रत्येक पिक्चर के साथ में एक बड़े बड़े वहाँ पर ब्लैक लेटर्स लिखे हुए थे। In 1 month you will be able to read this book. Then I will give you a bigger one. Then a still bigger one. Okay? टीचर ने बताया कि 1 महीने में तुम इस किताब को पढ़ पाओगी, फिर मैं तुम्हें एक इससे बड़ी किताब दूंगी, और तब जा करके इससे भी एक बड़ी और किताब आपको मिलेगी। In time you will be more learned than anyone else in the village. समय के साथ साथ तुम इस गांव में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। फिर कोई भी तुम पर हंस नहीं पाएगा, कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाने की हिम्मत नहीं होगी। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर। ये सब लोग तुम्हें सम्मान से सुनेंगे तुम्हारी बात को, और कहता है कि तुम अच्छे से बोल पाओगे बिना हकलाए। अंडरस्टैंड, समझी? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। अब घर जाओ और कल सुबह जल्दी यहाँ पर आना। Boli felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. भोली को ऐसा लगा जैसे अचानक गांव के मंदिर की सभी घंटियां अचानक बज उठी हों, और जो स्कूल हाउस के अंदर जो पेड़ था अचानक खिल गया हो, उसके रेड फ्लावर्स आ गए हों। उसका जो दिल था वो नई आशा से और नई लाइफ से जो है वो धड़क रहा था। चलो आज के लिए इतना ही। The rest of the part will be covered in next video. I'm sure that you must have good line to line explanation, and please don't forget to give your valuable suggestions in the comment box. And if you are a newcomer on my YouTube channel, then please subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.